محترم جناب صاحبزادہ تیمور سلطان صاحب جو کہ 8ویں لڑی میں سلطان حق بہو سرکار سے جا ملتے ہیں، آج ہم ہمارے آستانِ کوٹھی شریف میں تشریف لائے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان کے ادھر تشریف لانے سے ایک دو سوالات ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی بہت بڑی مہربانی اور نوازش ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت سے آراہ کیا، ہمیں نوازا۔ السلام علیکم سعید۔ صحیح سوال ہے، ذکر قلب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، صاحبزادگان کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس پرنور پروقار محفل میں مجھے دعوت دی۔ 11ویں شریف کی محفل میں شرکت کی اور الحمدللہ بہت لطف اندوز ہوئے۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ذکر قلبی جی، آپ انسان کی دو طرح کی خوراکیں ہیں، ایک ہے جسمانی خوراک، ایک ہے روحانی خوراک۔ ہمیں جسمانی خوراک کا تو پتہ ہے کہ ہم روٹی کھائیں گے اور ہمارے جسم کی قوت بحال ہو جائے گی، لیکن ہمیں اکثر اوقات ہمیں روحانی خوراک کا پتہ نہیں چلتا۔ انسان کو جسمانی مرض ہوتا ہے، اس کا علاج وہ ڈھونڈ لیتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے۔ اسی طرح جب روحانی تکلیف کوئی ہوتی ہے، جب بے چینی ہوتی ہے، جب کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ بے سکونی ہو جائے، تو اس کا ماجرا یہ ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ہماری جو روح ہے اس کو خوراک نہیں مل رہی۔ جس طرح ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور روح کی خوراک صرف ذکر قلبی، اس میں اللہ ذات پاک کا ذکر ہے۔ جو اس میں اللہ ذات پاک کا ذکر خصوصاً بالخصوص اولیاء کرام نے اس کا درس دیا ہے، جو کہ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی، الف اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من میں لائی۔ اب الف اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من وچ لائی، یہ جس طرح ہمارے جسم کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کا علاج ڈاکٹر کر سکتا ہے، اسی طرح ہماری اگر روح کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کا علاج صرف مرشد کر سکتا ہے۔ اور اس کا علاج کس طرح سے مرشد کرتا ہے کہ حضور سلطان العارفین نے اپنے بیت میں یہ چیز سمجھا دی ہے کہ اس میں اللہ ذات پاک ہی وہ ذکر ہے، جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کی تسکین اور سکون صرف اللہ کے ہی ذکر میں ہے۔ صوفیاء نے اس کو سمجھایا اپنے انداز میں ہے کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، اس کی جو بوٹی ہے وہ مرشد آپ کے دل میں لگا سبحان، تو سچا مرشد تھام لیں اور ذکر قلبی جب جاری کر دیں تو حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے ذکر میں محو ہوتا ہے، پھر وہ ہر گناہ سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل وہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رب نے فرما دیا فَاذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر دنیا میں کرو، میں قیامت تک تمہارے چرچے بلند کرتا رہوں گا۔ وہ جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اللہ کا ذکر دنیا میں کیا، آج دیکھیے خدا تعالیٰ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، جو قیامت نزدیک آتی جا رہی ہے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے ذکر کو مزید بلند کرتا جا رہا ہے۔ جی جزاک ظاہر اور باطن کے بارے میں کچھ علماء کرام ظاہر پر توجہ دیتے ہیں اور کچھ اولیاء کرام پہلے باطن کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں سلطان العارفین کا جو پیغام ہے وہ ذرا مختصر انداز میں آتا ہے۔ جی جناب، ظاہر اور باطن کا جو معاملہ ہے، میں اگر
मौलवी इज़म को या फ़िरका इज़म से हट के मैं बात करूँगा कि हमारे तो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैबदान नबी हैं, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। इसी तरह से मैं आपको एक हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन का एक वाक़या गुज़ार करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह को इतनी शान और इतना मकाम अता किया था कि एक बारात आपकी बारगाह में आई और अर्ज़ की कि बाबा जी हमें अहमदपुर जाना है, हमें रास्ता तो बताइए अहमदपुर। आपने फरमाया मेरे पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाओ, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, जब फरमाया कि आंखें खोलो, देखते क्या हैं कि गुंबद खजरा के सामने खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान। जब इसकी हमने अहमदपुर का रास्ता पूछा था, आप तो मदीना शरीफ लेके आ गए हैं, तो आपने फरमाया कि हम सिर्फ एक ही अहमद को जानते हैं, वो ये अहमद का नाम, वो अहमद कमली वाला है। अहमद कमली वाला। तो सूफिया का जो दर्स है वो जो सुल्तानुल आरिफ़ीन फरमाते हैं कि शरीयत के दरवाजे ऊंचे, राह फ़कर दा मोरी। आपने बहुत इसकी अगर आप डेफिनेशन करें तो ये बहुत ही, आपने वो कहते हैं कि वो कूजे में दरिया को, समंदर को बंद कर दिया। तो जो शरीयत है, शरीयत के दरवाजे इतने बुलंद हैं कि आप उसमें अगर कोई गुनाह कर भी लेते हो तो रब की रहमत से कभी महरूम न रहा करो, उससे मायूस ना हो, रब माफ़ फरमा देता है। लेकिन जो अल्लाह के बुजुर्गों पे बातें करते हैं या उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनको ये वाज़ेह दलील है कि बादशाह ने साफ फरमा दिया है कि जो फ़कीरी का रास्ता है, जो फ़क्र का रास्ता है, वो एक बारीक सुराख की मानंद है कि जिसमें से हर कोई नहीं गुजर सकता। जिसके ऊपर अल्लाह का फजल हो सिर्फ वही गुजर सकता। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त आपने बात की। सुल्तान हकूक सरकार की जो तसानीफ है जब आम लोगों में बयान की जाती है और वो उनकी शेर व शायरी बयान की जाती है, तो आम लोगों के बारे में उस तसानीफ से क्या असरात, आम लोग क्या उस पर तासुर कायम करते हैं? जी, मैं हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन के जो बैत हैं और जो उन्होंने किताबें लिखी या जो हमारे औलिया कराम ने जो भी कलाम लिखे हैं, मैं समझता हूँ दर हकीकत आप उन कलामों को पढ़ें और उनकी तशरीह जब करें तो आप देखेंगे कि वो यकीनी कुरान मजीद का तर्जुमा होता है। तो हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन के भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बैत लिखे गए हैं वो दर हकीकत कुरान मजीद का एक तर्जुमा ही है, अक्सी उसका बयान करते हैं अपने हर एक बैत में। सिर्फ हमें समझने की क्या, जो सब औलिया कराम ने, फिर हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन ने भी खुसूसी जिस चीज़ पे फोकस किया, जो अवामुन नास को समझाने की कोशिश की, वो ये समझाने की कोशिश की कि आप जब रास्ता तलाश करने पे आते हैं कि एम आई एम करेक्ट और नॉट, तो आप फिर तलाश करते हैं, आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते करते आप इस मकाम पे पहुंचते हैं कि आपको समझ आ जाए। जब आप इन बैत की तशरीह पढ़ते हैं, जब आप सूफिया की कुतुब का मुताला करते हैं और फिर उसको शरीयत के साथ आप मैच करते हैं। काफ़ी तो मौलवी कहते हैं, मौलवी हज़ारा कहते हैं कि पीर तो कोई शरीयत पाबंदी कोई नहीं जी, कोई शरीयत दी अलिफ बे नहीं आती। तो आप जो भी सूफी बुजुर्ग हैं उनको देखें, उनकी किताबें देखें, उनकी ज़िंदगियों को देखें, जो उन्होंने खल्क़ की खिदमत की, उसको देखें। दर हकीकत हर सूफिया ने अपने अपने दौर में अवामुन नास को ये समझाया है कि सीधा रास्ता सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र का रास्ता है। जो दिल में अल्लाह के अपने इस कल्ब को रब के ज़िक्र से जारी कर दो और इस दिल में अल्लाह के नूर को बसा लो, फिर आप शरीयत के भी पाबंद हैं, आप दीन के भी पाबंद हैं, आप इंसानियत की भी खिदमत कर सकते हैं। और आप देखें तारीख उठा के कि तारीख में सबसे ज़्यादा इंसानियत की खिदमत अगर किसी ने की है तो वो सूफिया ने की है, वो दर्स तसव्वुफ़ ने की है, औलिया कराम ने। और दर्स तसव्वुफ़ अमन का दर्स है, प्यार का दर्स है, मोहब्बत का दर्स है। वो कहते हैं कि अच्छों को तो हर कोई गले लगा लेता है,
अगर गंदों को किसी ने गले लगाया है तो वो ये सूफिया है, जिन्होंने गंदों को भी गले से लगाया और कुतुब बना दिया, अब्दाल बना दिया, वली बना दिया। ये बुजुर्ग हस्तियां हैं। जिस तरह के सुल्तान साहब की बहुत सारी कुतुब हैं और उन कुतुब का ही हमारे पीर मुर्शद हज़रत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मुतज़िल आली सरकार ने मुताला फरमाया। मुताला फरमाने के बाद चिल्ला कशी की, चिल्ला करने के बाद जब उनको मर्तबा मिला, मर्तबा मुयस्सर आया, तो यही पैगाम जो सुल्तानुल आरिफीन हक महू सरकार का पैगाम है कि अपने ज़ुबान के साथ साथ अपने कल्ब को भी मुनव्वर कर लें, नूर कर लें, अपने कल्ब को भी अल्लाह के ज़िक्र में लगा लें। यही पीर मुर्शिद सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही सरकार का पैगाम, यही उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाई। जैसा कि आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आज 42वां 11वीं शरीफ यानी 42 साल से 11वीं शरीफ सरकार गौसुल आज़म के नाम में मुनक्किद की जा रही है, जो यहाँ पर आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और आप मुझे इस प्रोग्राम के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या महसूसात की, और अंजुमन के बारे से में भी थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार करें कि अंजुमन भी ये जो कलम का जिक्र लेके मैदान में उतरी है, तो इसके बारे में भी आपने अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं जिस महफिल में मैंने शिरकत की है, मैं एक बार फिर से आप सबको इस मुबारकबाद में पेश करता हूँ। और जो जब मैं तफरीक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में देखा, जो पुरनूर महफिल सजाई गई, जितनी खूबसूरत माशाल्लाह से, मेरा ईमान है कि पीरान पीर दस्तगीर आज बहुत खुश हुए होंगे जब उन्होंने अपने मुरीदैन को, अपने ग़ुलामों को उनके ज़िक्र में और अल्लाह के ज़िक्र में इतना महव देखा होगा। मेरी जी पहली हाज़िरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में, और जो मैंने देखा है बज़ाहिर और जो महसूस किया है वो यही है कि मैं ज़्यादा तो वाकिफ़ नहीं रहा बुज़ुर्गों से। मैं बुज़ुर्गों की सैयद हज़रत रियाज अहमद गौहर शाह साहब की मैं उनके गोशगुजार नहीं हो सका था, उनकी बारगाह में हाजिर नहीं हो पाया। लेकिन जो मैंने आज किबला का जो मिशन देखा है, मुझे वो मिशन सिर्फ कल्बे खुदाबंदी के जिक्र को बुलंद करने का मिशन नजर आया। वही खुशबू आ रही है, वही खुशबू मुझे आई है। वो जो सुल्तान साहब ने जो पैगाम जो हमारे बुजुर्गों ने, हजरत सफी सुल्तान बाहू ने जिस जिक्र पे फोकस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रियाज अहमद गौहर शाही ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी जिक्र पे फोकस करते हुए आज अपने मुरीदैन को, अपने अकीदतमंदों को वही सिखाया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो सज्जादा नशीन हैं, उनके जो औलाद हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखते हुए कि उन्होंने भी इसी मिशन को लेके आगे वो चल रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इस्तिकामत अता करे, इसका साया सब पे कायम रखे और इस आस्थाने को हमेशा सलामत रखे। आज की महफिल जो थी ना, वो 11वीं शरीफ के साथ साथ ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी थी, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके ऊपर भी वो उलमाए कराम ने अपने अपने इज़हार ख्याल किया। जी माशाल्लाह। तो आपके यहाँ तशरीफ़ लाने का, आपकी वक़्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे जनाब साहबज़ादा तैमूर सुल्तान साहब, जो कि 8वीं लड़ी में सुल्तानुल आरिफीन हक महू सरकार से जा मिलते हैं। हमारी खुशकिस्मती के यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया।